The topic is skin, and this class is for the GNM nursing first year students. In today's class हम पढ़ेंगे structure of skin के बारे में. Already this topic is already discussed in the class, so this is a revision class on the topic skin. So the skin completely covers the body and it is continuous with the membranes lining the body orifices. So आपकी जो पूरी body है that is covered by the skin, and also जो आपके body orifices हैं, for example आपका ear orifice है या फिर nostril है, तो skin is also continuous with the membranes and which lie the body orifices. So the skin protects the underlying structure from the injury and from invasion by the microbes. तो जो आपकी स्किन होती है वो एज अ बैरियर की तरह काम करती है, बैरियर अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन्वेजन, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि जो माइक्रोब्स है वो एंट्री ना ले पाए, प्लस कोई भी इंजरी है इंटरनल ऑर्गन्स की वो इंजरी से प्रोटेक्ट कर सके. सो आपके जो स्किन के बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंजरी से प्रिवेंट करना एंड बैक्टीरिया से प्रिवेंट करना. देन द स्किन ऑल्सो कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ द पेन, टेम्परेचर एंड टच. तो स्किन की वजह से ही वी कैन फील द पेन, वी कैन sense the temperature, and we can feel the sensation of touch. So skin is involved in the regulation of body temperature. स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. जब आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि अगर आप किसी समर सीज़न में हैं, तो बिकॉज एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हीट अप है. सो आपकी बॉडी के अंदर टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो बॉडी है दैट विल cause the secretion of sweat, and skin is involved in the sweat secretion, that is regulation of the body temperature. Now in this class we will discuss about the structure of the skin, and in the next class we will discuss about the functions of the skin and the physiology of the skin. So skin is the largest organ in the body because it is covering the whole body, right? Then it has a surface area of about 1.5 to 2 meter square in the adults. इसका जो सरफेस एरिया है 1.2 मीटर स्क्वायर होता है एडल्ट्स में. दो लेयर्स बहुत मेन है इसकी, एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. सो अगर आप देखोगे तो देयर इज़ द एपिडर्मिस, देयर इज़ द डर्मिस एंड देयर इज़ द हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं. नाउ इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है that is associated with the cutaneous membrane and the accessory structures. तो जो cutaneous membrane है वो स्किन ही है, और जो accessory structures हैं उसके अंदर आता है hair, glands and the nails. So in this class we will discuss about epidermis, dermis, the glands, hair and the nails. Now first we will discuss about the epidermis. Epidermis most superficial layer है skin की. It is composed of the stratified keratinized squamous epithelium. वो stratified keratinized squamous epithelium की बनी है. It varies in thickness in different parts of the body. एपिडर्मिस की जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिफरेंट होती है. थिक इट इज़ थिकेस्ट ऑन द पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फुट. आपके जो पाम्स हैं हैंड के एंड जो फुट के सोल्स हैं वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है, तो उसमें एपिडर्मिस जो है वो क्या है, थिक है. सो दैट्स वाई बाकी अदर पार्ट्स में इट इज़ थिन, but in the palms and in the sole it is thick. So that's why the epidermis varies in the thickness in the different parts of the body. Now epidermis में there is no any blood vessel or the nerve endings. So जो epidermis है उसमें ना blood vessels हैं और ना nerves हैं. So जो dermis होती है, इन epidermis के नीचे जो layer है that is called dermis. तो डर्मिस में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी ब्लड सप्लाई हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं डर्मिस से एपिडर्मिस में, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं एपिडर्मिस लेयर के. सो एपिडर्मिस हैज़ नो एनी ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स, बट दे आर सप्लाइड by the nutrients by the diffusion method from the dermis layer. Now
एपिडर्मिस में 5 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड द स्ट्रेटम बेसल। सो सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्ट्रेटम बेसल मीन्स इट इज़ द बेस लेयर। सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसल। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं उनकी केवल एक ही लेयर होती है, और जो सिंगल लेयर है सेल्स के उनके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, दे आर केराटोनोसाइट्स, मेलानोसाइट एंड द टेक्टाइल सेल्स। So 3 types of cells are present in the layer of stratum basal. Now सबसे पहले केराटोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। These are the most common cells and ये क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, they are continuously dividing। and ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, they are secreting the keratin protein। Now केराटिन का क्या फंक्शन है, केराटिन जो होता है that is responsible for the strengthening of the skin and also make the skin waterproof। इसका मतलब केराटिन की वजह से जो स्किन है उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है और वो वाटरप्रूफ रहती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ ये जो केराटिनोसाइट्स हैं जो कि सेल डिवाइड कर रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है, दे विल गो थ्रू द सेल डिविजन टू रिप्लेस द सेल्स विच आर शेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन। तो स्ट्रेटम बेसल तो सबसे लास्ट की लेयर है, जो सबसे 5th लेयर है, उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेड ऑफ होते रहते हैं, दैट स्किन लेयर गेट शेड ऑफ। नाउ स्किन की वाली लेयर अगर शेड ऑफ हो रही है तो इट मीन्स जो बेसल लेयर है उसमें सेल डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूसली। सो स्ट्रेटम बेसल एक ऐसी लेयर है जिसमें केराटिनोसाइट्स विल गो द सेल डिवीजन, ताकि जो सरफेस ऑफ द स्किन पे जो सेल्स हैं जो कि शेड ऑफ हो रहे हैं उनको रिप्लेस कर सकें। नाउ केराटिनोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज़ मेलानोसाइट्स, जो कि इसमें हमने ऑरेंज कलर के दिखाया है। ये क्या करते हैं, केराटिनोसाइट्स के आसपास स्कैटर्ड होते हैं। मेलानोसाइट्स हैं, नाम से पता चल रहा है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि अमीनो एसिड से बनता है। तो ये जो मेलानिन होता है, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, मेलानिन जो न्यूक्लियस है उसके आसपास अपने आप को सराउंड कर लेगा और जो यूवी रेज आ रही हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से प्रोटेक्ट करता है डीएनए को। इसका मतलब सेल जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। सो मेलानिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द DNA of the cell from the UV rays. Second, melanin is responsible for the color of the skin. Now स्किन कलर इज़ अफेक्टेड बाय, जो स्किन का कलर है वो किससे अफेक्टेड होता है, फर्स्ट है मेलानिन पिगमेंट की वजह से जो कि मेलानोसाइट्स बनाते हैं। दूसरा है नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट मीन्स आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है उतना ज़्यादा स्किन का कलर पिंकिश होता है। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ सर्कुलेटिंग इन द डर्मिस। Third, excessive level of bile pigments in the blood and the carotenes in the subcutaneous fat gives the yellow color to the skin. So skin color is affected by the melanin. जितना ज़्यादा मेलानिन होता है उतना ज़्यादा स्किन वाइटिश होती है। देन हीमोग्लोबिन, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, अमाउंट ऑफ ब्लड है, उतना ज़्यादा पिंकिश कलर होता है स्किन का। एंड जितना ज़्यादा बाइल पिगमेंट्स हैं उनकी वजह से येलो कलर होता है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हमने पढ़ा है टेक्टाइल सेल्स। ये जो टेक्टाइल सेल्स होते हैं जो कि इसमें पैरेट कलर में हैं, दे आर ऑल्सो स्कैटर्ड अमंग द केराटिनोसाइट्स। इन सेल का क्या फंक्शन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच रिसेप्टर। ओके, सो हमने अभी पढ़ी बेसल लेयर, स्ट्रेटम बेसल, जो कि फर्स्ट लेयर होती है, सबसे डीप में होती है। इस लेयर में 3 सेल्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स एंड द टेक्टाइल सेल। जो केराटिनोसाइट्स हैं वो सेल डिवीजन करते रहते हैं, मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं एंड द टेक्टाइल सेल्स एज अ टच रिसेप्टर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन हो पाती है टच की। नाउ सेकेंड लेयर का नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। जो सेकेंड लेयर है उसमें
जो केराटिनोसाइट्स ने जो सेल्स बनाए थे वही सेल्स वही सेल्स इस लेयर में होते हैं, ओके, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड द डॉटर केराटिनोसाइट्स। एंड इनके साथ ही साथ इसमें डेंड्राइटिक सेल भी होते हैं। डेंड्राइटिक सेल का क्या फंक्शन है? दीज आर द इम्यून सेल्स दैट हेल्प फाइट द इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो सेल हैं वो बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, किसी भी माइक्रोब से फाइट करते हैं। सो दीज आर द इम्यून सेल्स। सो second layer is stratum spinosum consisting of dendritic cells. These dendritic cells are the immune cells. Now third layer is the stratum granulosum. स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में 3 से 5 लेयर होती हैं केराटिनोसाइट्स की, ओके। तो जो लेयर 3 है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, उसमें 3 से 5 लेयर होती हैं केराटिनोसाइट्स की। नाउ केराटिनोसाइट्स कि जब ये लेयर होती हैं तो इसमें एक प्रोसेस चलता रहता है जिसका नाम है केराटिनाइजेशन। इसका मतलब पहले जो केराटिनॉइड सेल्स होंगे उनके अंदर दे विल बी फिल्ड विद द कैरेटिन प्रोटीन। उनके अंदर बहुत सारा कैरेटिन प्रोटीन क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो जितने भी सेल के नॉर्मल जो न्यूक्लियस है, नॉर्मल जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे डिसअपेयर हो जाएंगे। ओनली क्या रह जाएगा? कैरेटिन रह जाएगा। इट मीन्स सेल्स जो होगा वो डाई होगा एंड सेल विल बी फिल्ड विद द कैरेटिन प्रोटीन। सो केराटिनाइजेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? दैट इज द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम लेयर। नाउ लेयर 4 स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है लेयर 4, इसमें भी क्लोजली पैक सेल्स होते हैं। दीज आर द किलियर सेल्स। किलियर सेल्स मीन्स इनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है ना ऑर्गेनल्स होता है। इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एलिडिन प्रोटीन, ओके। और ये जो आपके जो पाम्स हैं और जो सोल्स हैं फुट के, केवल उसी एपिडर्मिस में ही होता है। देखो हमारी जो बॉडी है उसमें 2 टाइप ऑफ स्किन होती है, थिक स्किन एंड द थिन स्किन। जो आपके पाम्स हैं और जो सोल्स हैं उसमें थिक स्किन है। थिक स्किन का ये मतलब है कि जो एपिडर्मिस है वो 5 लेयर की बनी होगी, जिसमें कि लेयर 4 स्ट्रेटम ल्यूसिडम एक्स्ट्रा होगी। इसका मतलब थिन लेयर 4 लेयर की बनी होगी, जिसमें कि जो लेयर 4 है स्ट्रेटम ल्यूसिडम नहीं होगी, ओके। So fourth layer is the stratum lucidum, which is closely packed and consisting of kiliar cells in which there is no any nucleus and the organelles, and it is filled with the alidin protein. Now there is a layer 5. Layer 5 का नाम है stratum corneum. जो लेयर 5 होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये केराटिनाइज सेल्स की ही बनी होती है, बट ये जो सेल्स हैं वो डेड हैं। इट मीन्स ये जो लेयर होती है 5th लेयर, कम से कम इसको 2 वीक्स लगते हैं। 2 हफ्ते में ये शेड ऑफ हो जाती है और 2 हफ्ते लगेंगे फिर जो नीचे से जो लेयर्स हैं वो ऊपर टॉप लेयर में आते आते। सो इट इज़ द एपिडर्मिस स्ट्रक्चर। इसमें हमने 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके, ओके। तो जो शेड ऑफ वाली लेयर है वो कौन सी है? वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ओके। कौन सी लेयर है जो कि थिक स्किन में ही पाई जाती है? वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम 4th लेयर। कौन सी लेयर है जिसमें कि मेलानोसाइट्स होते हैं? वो है स्ट्रेटम बेसल लेयर 1st, ओके। सो कौन सी लेयर है जो कि केराटिनाइजेशन प्रोसेस के लिए मानी जाती है? वो है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम 3rd layer, okay. So this is all about the layers of the epidermis. अभी मैंने आपको थिन स्किन और थिक स्किन के बारे में बताया। थिन स्किन में केवल 4 ही लेयर होती हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम नहीं होता, जबकि जो थिक स्किन है उसमें 5 लेयर होती है। और द राइटिंग इसमें पाम्स की स्पेलिंग गलत है। इट इज़ फाउंड ऑन द पाम्स एंड द सोल्स ऑफ द फुट। नाउ अभी हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डर्मिस। डर्मिस जो होता है वो किससे बनी है? डर्मिस की जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और उसमें मैट्रिक्स होता है, ओके। मैट्रिक्स का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो उस फ्लूइड में फ्लोट कर रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड द इलास्टिक फाइबर। नाउ
डर्मिस के अंदर बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है ब्लड वेसल, दूसरा है लिम्फ वेसल, तीसरा है सेंसरी नर्व एंडिंग्स, चौथा है स्वेट ग्लैंड्स एंड द डक्ट्स, पांचवा है सेबेशियस ग्लैंड्स एंड छठा है हेयर्स, एरेक्टर पाइलाई मसल्स। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ जो डर्मिस है वो 2 लेयर की बनी है, ठीक है, केवल 2 ही लेयर है, पैपिलरी लेयर एंड द रेटिकुलर लेयर। नाउ पैपिलरी लेयर क्या होती है? पैपिलरी जो लेयर है उसमें एक तो कनेक्टिव टिश्यू है ही, उसमें क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू से ही क्या होता है, प्रोजेक्शंस आती हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं वो बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं डर्मल पैपिले। ओके, और ये जो डर्मल पैपिले हैं वो एपिडर्मिस लेयर के साथ एक कनेक्शन बनाती हैं, किसके सपोर्ट से? एपिडर्मल रिजेस के सपोर्ट से। इसका मतलब नीचे डर्मिस है, ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का एपिडर्मल रिजेस है और डर्मिस की पैपिलरी लेयर के डर्मल पैपिले हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो इन दिस वे जब ये एपिडर्मल रिजेस एंड द डर्मल पैपिले एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली सरफेस एरिया जो है इन दोनों लेयर्स का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डर्मल पैपिले इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया of the contact between these two layers. Okay, now dermal papillae में कैपिलरीज भी होती हैं और सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। नाउ दूसरी लेयर है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। These fibers are found around the hair bulb, sweat gland and sebaceous gland. तो हेयर के आसपास, स्वेट ग्लैंड के आसपास, सेबेशियस ग्लैंड के आसपास ये फाइबर्स पाए जाते हैं। रेटिकुलर लेयर में मास सेल्स, नर्व एंडिंग्स, लिम्फेटिक्स, एपिडर्मल अपेंडेजेस एंड फिब्रोब्लास्ट भी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस, जिसमें कि 2 लेयर्स हैं, पैपिलरी एंड द रेटिकुलर। नाउ डर्मिस के अंदर ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं, राइट। So arterioles form a fine network with the capillary branches which are supplying the sweat gland, sebaceous gland, hair follicles and the dermis layer. Okay, and also lymph vessels form a network throughout the dermis. Now sensory nerve endings. जो डर्मिस है उसमें नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। कौन कौन से सेंसेशंस हो सकती हैं? टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द पेन। सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो डर्मिस लेयर में इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो डर्मिस लेयर में कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स हैं? पहला है फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो पेन के लिए, हीट सेंसेशन के लिए एंड कोल्ड सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है मर्कल डिस्क जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है क्रॉस एंड बल्ब जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन रूट हेयर प्लेक्सिस जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आपका मेसेनर कॉर्पसल्स है जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन पैसिनियन कॉर्पसल्स है जो कि प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द रिफ्यूनी एंडिंग्स है जो कि प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एक तो इसमें फ्री नर्व एंडिंग्स है जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा मेसेनर कॉर्पसल्स हैं जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड तीसरा पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं जो कि प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ हमने पढ़ लिया डर्मिस की 2 लेयर्स होती हैं, पैपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर। फिर हमने पढ़ा कि और भी चीज़ें होती हैं डर्मिस में, है ना। उसमें से हमने पढ़ा कि ब्लड लिम्फ वेसल्स होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तीसरा स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा आपके पाम्स में, सोल्स में, एक्सिला और ग्रॉइन में होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। स्वेट ग्लैंड की जो बॉडीज़ होती हैं, बॉडीज़ मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, जो बॉडीज़ है ग्लैंड्स की, वो कहाँ पे जाती हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाती हैं और वहाँ पे कॉइल्ड होकर रखी होती हैं। इसका मतलब स्वेट ग्लैंड डर्मिस में तो होता है बट उसका जो बॉडी है वो कॉइल्ड होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होती है। नाउ स्वेट ग्लैंड भी 2 तरीके के होते हैं। स्वेट ग्लैंड विच ओपन ऑन टू द स्किन सरफेस थ्रू टाइनी पोर्स। ओके, जैसे कि आपकी स्किन है,
इसमें क्या है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो ये डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं स्किन सरफेस में, ठीक है। तो इसमें जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, और ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर में। सेकेंड टाइप है आपका जो कि हेयर फॉलिकल्स के अराउंड होता है स्वेट ग्लैंड, ये बेसिकली एक्जिला में पाया जाता है। नाउ स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हेयर्स के बारे में। द पार्ट ऑफ द हेयर अबव द स्किन सरफेस इज द शाफ्ट एंड द रिमाइंडर इज द रूट। तो हेयर के यहाँ दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शाफ्ट, एक होता है रूट। जो आप अपनी बॉडी में जो आप हेयर देख रहे हो, जो आपको विजिबल है, दैट इज कॉल्ड द शाफ्ट, बट इसके अंदर का जितना भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द रूट। तो जो कलर है हेयर का वो जेनेटिकली क्या होता है, डिटरमाइंड होता है, तभी आप सबके कलर, हेयर कलर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। कलर ऑफ द हेयर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट। तो आपके हेयर का जो कलर है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट है। प्लस जैसे जैसे एजिंग होता रहता है उस तरीके से जो मेलानिन होता है वो अपसेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। नाउ हेयर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ें तो देयर इज़ अ हेयर शाफ्ट, देयर इज़ द रूट एंड देयर इज़ द हेयर बल्ब, है ना। जो हेयर शाफ्ट है वो टॉप पोर्शन का है, टॉप में है, सबसे टॉप में है, जो कि सरफेस ऑफ द स्किन से बाहर निकल रखा है, तो उस पोर्शन को हम बोलेंगे हेयर शाफ्ट, ठीक है। देन उसके बाद हेयर रूट है। हेयर रूट जो है वो बल्ब से लेके स्किन सरफेस के बीच में है। जो बल्ब है दैट इज़ एक्सटेंडिंग, सॉरी जो रूट है, हमने अभी रूट के बारे में पढ़ा, रूट जो है वो बल्ब से टू द सरफेस ऑफ स्किन तक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बल्ब आता है, हेयर बल्ब, जो कि रूट से डर्मल स्किन लेयर की तक आता है। सो हेयर shaft is the top portion and it is extending out of the surface of the skin, right? Then hair root, it is from hair bulb to the surface of the skin, and then the bulb, it is extending from hair root to the dermal skin layer, okay। Now हेयर फॉलिकल होता है जो कि हेयर रूट के आसपास होता है, ओके। ये जो हेयर फॉलिकल है ये कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल शीट का बना होता है। इसका मतलब हेयर शाफ्ट है, हेयर रूट है और हेयर बल्ब है, ठीक है। जो हेयर रूट है उसके आसपास जो लेयर है, एक कनेक्टिव टिश्यू, एक एपिथेलियल शीट की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। नाउ एट द बॉटम ऑफ द फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल है उसके बॉटम में एक हेयर बल्ब है, एक हेयर बल्ब है, उसमें मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स का नाम है जर्मिनल मैट्रिक्स। ये जो जर्मिनल मैट्रिक्स है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं माइटोसिस से। प्लस यहाँ पे एक हेयर पैपिला होता है। पैपिला में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नर्व्स भी होते हैं। प्लस जो मैट्रिक्स है उसमें मेलानोसाइट सेल्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलानिन के लिए, जिसकी वजह से स्किन कलर, सॉरी हेयर कलर आता है। अगर आप इसमें देखोगे हेयर शाफ्ट, हेयर रूट में भी देयर इज़ अ हेयर बल्ब, देन हेयर मैट्रिक्स एंड देयर इज़ द हेयर पैपिला। नाउ जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि अभी हमने देखे, जो कि मैट्रिक्स में थे, मेलानोस जो साइट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट हैं, यू मेलानिन है और फियो मेलानिन है। ये जो यू मेलानिन है उसकी वजह से डार्क कलर हो जाता है, फियो मेलानिन की वजह से वाइट कलर हो जाता है। ऑल्सो जो इस हेयर का जो कलर है वो हार्मोनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है।
सो बेसिकली मेलानोसाइट जो सेल्स थे उनमें जो पिगमेंट था वो केराटिनाइज सेल्स में जाके उस तरीके से सेल्स को कलर दे देता है, जिसकी वजह से हेयर कलर आता है। नाउ हेयर्स में ही एरेक्टर पाइलाई मसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जो हेयर फॉलिकल्स है उससे अटैच्ड होती हैं। तो और ये जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, स्मूथ मसल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डर लग रहा है या फिर आपको ठंड लग रही है तो ये जो मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज स्मूथ मसल फाइबर्स, जो हेयर होंगे वो इरेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगे स्किन सरफेस से, जिसको आप बोलते हो कि गूज फ्लैश हो रहा है या फिर गूज बम्स आ रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो जो हेयर फॉलिकल है उससे एक मसल अटैच्ड है जिसका नाम है एरेक्टर पाइलाई। तो अगर आपको ठंड लग रहा है तो उस टाइम पे ये जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो हेयर फॉलिकल है दैट विल बी लाई परपेंडिकुलर टू द स्किन सरफेस, जिसको हम बोलते हैं गूज बम्स आ रहे हैं या गूज फ्लैश हो रहा है। नाउ दूसरा होता है सिबेशियस ग्लैंड। हेयर से रिलेटेड होता है सिबेशियस ग्लैंड। ये जो सिबेशियस ग्लैंड होता है वो क्या करता है, सीबम को सीक्रेट करता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीबम, इट प्रोटेक्ट द हेयर एंड द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। सो सिबेशियस जो ग्लैंड होते हैं वो सीबम को सीक्रेट करते हैं। These glands are present in the skin of all parts of the body except the palms of the hands and the soles of the feet. These are the most numerous in the skin of the scalp, face, axilla and the groin. तो जो sebaceous gland हैं वो सबसे ज़्यादा स्किन जो है स्काल्प की स्किन में, फेस की स्किन में, एक्जिला और ग्रॉइन की स्किन में होते हैं, जबकि पाम्स ऑफ द हैंड, सोल्स ऑफ द फीट में नहीं होते। सीबम का क्या फंक्शन है, इट कीप्स द हेयर सॉफ्ट, लेबल एंड द शाइनी अपीयरेंस देता है। स्किन में इट प्रोवाइड सम वाटर प्रूफिंग, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ बैक्टीरियासाइडल फंगिसाइडल एजेंट, इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नील। सो हमने हेयर्स के बारे में भी पढ़ लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नील्स। सो डर्मिस में आपने पढ़ा था, कंप्लीट कर दिया था। डर्मिस के बाद हमने हेयर पढ़ा, ग्लैंड्स पढ़े जिसमें हमने सिबेशियस ग्लैंड पढ़ा, स्वेट ग्लैंड पढ़ा, एंड अब हम पढ़ रहे हैं नेल्स। तो नेल में जो ये फ्री एज है, इसको ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वाइटिश पार्ट होता है, जो कि आप अपने नेल्स में देख सकते हो, सबसे आगे की तरफ होगा, जो कि हम बोलते हैं कि नाखून बढ़ गए हैं तो जो पार्ट बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं फ्री एज। उसके बाद नेल बॉडी है। नेक्स्ट जो होती है नेल बॉडी है, जो कि पिंकिश होती है, क्योंकि इसमें कैपिलरीज जो होती हैं, अब वो जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से वो पिंकिश है। देन देयर इज़ द लूनुला। लूनुला लूनुला क्या है, एक नेल बॉडी के बाद ही एक क्रिसेंट शेप्ड एरिया है नेल का, जिसको हम बोलते हैं लूनुला। जैसे ये फिनिश होता है, देयर इज़ द नैरो बैंड ऑफ स्किन दैट एक्सटेंड इनटू द नेल बॉडी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। एंड देन देयर इज़ द नेल रूट। जो नेल रूट है इट इज़ एक्सटेंड अंडर द स्किन टूवर्ड्स द पाम ऑफ द हैंड। सो नेल रूट क्या होता है, वो एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द पाम ऑफ द हैंड। नाउ अगर आप इसे इस तरीके से देखो तो पहले फ्री एज है, फिर नेल बॉडी है, लूनुला है, क्यूटिकल है और नेल रूट है ना। यही अभी हमने पढ़ा। उसके बाद जो नेल है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, वो बाय माइटोसिस प्रोसेस से हो रहा है। जो आपका नेल रूट है उसके नीचे एक और होता है जो हम बोलते हैं नेल बेड, जहाँ पे कि लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेल बेड का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कि सेल्स बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेल मैट्रिक्स। और नेल बॉडी के नीचे ही देयर इज़ द पोर्शन
जिसको हम बोलते हैं हाइपोनिकियम। क्यूटिकल का एक नाम है एपोनिकियम, और हाइपोनिकियम एक और पार्ट है नेल का। सो अगर आप लेटरली देखोगे, देयर विल बी फ्री एज, नेल बॉडी, ल्यूनुला, क्यूटिका, नेल रूट। नेल रूट के नीचे नेल बेड, नेल बेड का एक छोटा सा पोर्शन है नेल मैट्रिक्स जो कि ग्रो करता रहता है। नाउ नेल का क्या फंक्शन है? नाउ अगर आप हैंड्स में देखो तो जो आपके नेल हैं वो हर महीने 3 mm के आसपास ग्रो करते हैं, और ये रूट से फ्री एज तक आते आते जितना होता है लेंथ, उससे 6 महीने लग जाते हैं आने में। जबकि जो टो नेल्स होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते, वो 1 महीने में केवल 1 mm ही करते हैं, और उनको कम से कम 12 से 18 महीने लग जाते हैं रूट से फ्री एज तक बढ़ते बढ़ते। ये देखा गया है कि जो नेल्स होते हैं वो समर में ज़्यादा ग्रो करते हैं। वो इसलिए दिस इज़ अ थ्योरी कि जब हम समर में होते हैं तो हम ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, हम एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और नेल्स जो होते हैं वो समर में ग्रो करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेल? नेल आपको पता ही होगा, जैसे कि नेल आपके अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो बोन है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट कर रहा है। कोई अगर लिफ्ट कर रहा है या फिर किक कर रहा है या फिर पिक कर रहा है कोई भी चीज़, फुटबॉल खेलते हुए, बेसबॉल खेलते हुए, तो इन दैट केसेस नेल्स प्रिवेंट फ्रॉम द बोन डैमेज। ऑल्सो नेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रास्पिंग द थिंग्स, है ना। आप अपने नेल्स जैसे थंब है और फिंगर है, उससे अगर कुछ भी पकड़ते हो तो नेल्स कैन हेल्प इन ग्रास्पिंग। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द डिगिंग, अगर जैसे सैंड वगैरह को डिग कर रहे हो तो उसमें हेल्प करते हैं, क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, स्क्रैचिंग में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द नेल्स। सो इस क्लास में वी डिस्कस टुडे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, जिसमें हमने पढ़ा एपिडर्मिस, डर्मिस के बारे में, देन हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड, and the nails, hair and the nails. So thank you so much.